Dear students, myself Bishwit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Dagapur, Shiliguri, District Darjeeling, West Bengal. আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো প্রবলেম সলভিং মেথড অফ টিচিং। So last two class already we have learned about 5E model of teaching and Herbartian approach of teaching. So let's go, today we will discuss about problem solving method of teaching. So what is problem solving method? How can students solve the problem and কি করে তারা প্রবলেমগুলো অতিক্রম করবে সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। প্রবলেম সলভিং মেথড B.Ed 4th Sem কোর্স 8 B Unit 3. So first is concept and definition of problem solving method. So concept and definition of problem solving. So problem solving is a teaching strategy that employs the scientific method in searching for information. It is a process to choose and use the effective and beneficial tools and behaviors among the different potentialities to reach the target. And it contains scientific method, critical thinking, taking decision, examining and reflective thinking. Actually আমরা এটা বলতে পারি যে প্রবলেম সলভিং বলতে বিশেষ কোনো একটা সমস্যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই সমস্যাটা শিক্ষার্থীরা সমাধান করবে। এই বিষয়টা কিভাবে সমাধান করবে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সমস্যা যে কোনো ধরনের হতে পারে। যখন আমরা কোনো কোশ্চেন স্টুডেন্টদের দিয়ে থাকি, জাস্ট কোনো একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছি, দ্যাট মিন্স ওটা সমস্যা হতে পারে। অ্যাসাইনমেন্ট, কোনো একটা প্রোগ্রাম করতে দিচ্ছি, কোনো একটা বিষয় লিখতে দিচ্ছি, ওটাও একটা সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ প্রবলেম মিনস ए क्रिटिकल थिंकिंग, टेकिंग डिसीशन, एग्जामिनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा दैट टाइम, ओनली दैट टाइम आपका क्रिटिकल थिंकिंग अराइज होगा। आप तभी उसके बारे में, उसके ऊपर आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। आप थिंकिंग करते आपको सल्यूशन मिल जाएगा, देन यू कैन टेक डिसीशन। आप उसको रियलाइज़ करेंगे, आप उसको देखेंगे, उसके बाद आप एक रिजल्ट निकालेंगे, दैट मीन्स सॉल्व। तो दिस इज द कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू स्किनर वी कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट appears to interfere in a problem solving. The entire subject matter is organized in such a manner that it can be dealt with through the problems identified during the study. So this is the concept and definition of problem solving. यहाँ पे मैंने और एक पॉइंट छोड़ दिया था, दिस मेथड इज यूज्ड in the process of solving a problem to generalize, audit, to synthesize. Now let's move on to how can we solve the problem. देखिए यहाँ पे मैंने एक थ्रस्टी क्रो, उनका एक पिक्चर दिया। एक्चुअली सिंपल एक प्रॉब्लम है। समटाइम्स ये क्रो बहुत थर्स्टी हुआ था, तो दैट टाइम उसको पानी पीना है। हाउ कैन वो कैसे पानी पिएगा? सो एक पॉट है जहाँ पे पानी थोड़ा था नीचे, लेकिन उनका खुद का दिमाग लगाया, क्योंकि मेरे को अभी पानी पीना ही है, तो खुद का दिमाग लगा के उसमें एक एक करके पत्थर डाल के पानी को ऊपर लेके आया, तब वो पानी पिया। सो ये जो प्रोसेस है, द
दैट मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जा रहा है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर आप सोच रहे हैं, जब आप सोचेंगे ऑटोमेटिकली उनका सॉल्व निकल आएगा. सो दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस पिक्चर हेयर. सो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. तो here is some different steps. First is identifying and defining the problem. Second is analyzing the problem. Third is formulating tentative hypothesis. Fourth is testing the hypothesis. And fifth is verifying of the result or checking the result. तो ये हैं 5 स्टेप्स. सो हम डिस्कस करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में. आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देन एनालाइज द प्रॉब्लम. आप जो प्रॉब्लम चूज़ किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसी प्रॉब्लम को आप एनालाइज कीजिए. सो इसका सल्यूशन कहाँ से आ सकता है. देन फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस. जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचे हैं, दैट टाइम ऑटोमेटिकली आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होगा. सो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन आपको मन में अराइज होगा. तो ये जो हो सकता है, ये हो सकता है, ये जो क्वेश्चंस आपका मन में आ रहा है, ये सबको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. एक्चुअली हाइपोथेसिस इज एज्यूम, आप गेस कर रहे हैं, जिसको हम वन सेंटेंस में बोलते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन. सो आप गेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम को ये हो सकता है, अगर ऐसे हम जाएंगे तो ऐसे हो सकता है, अगर इस बारे में हम सोच के कुछ निकालेंगे तो इसका रिजल्ट ये आ सकता है. सो सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल. जैसे कि कोई भी एक प्रॉब्लम, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन टीचर्स. ये एकदम सिंपल एक टॉपिक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन टीचर्स. तो ये जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, ये टॉपिक की, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम के ऊपर आपको सोचना है, आपको हाइपोथेसिस क्या क्या होगा. सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम कॉमन है, सिंपल है. सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन टीचर्स मीन्स वुमेन टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट लेवल. आपको पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा. वुमेन टीचर्स प्राइमरी लेवल का भी हो सकता है, सेकेंडरी लेवल का भी हो सकता है, हायर सेकेंडरी लेवल का भी हो सकता है, हायर एजुकेशन का लेवल से भी हो सकता है. सो आपको 4 पॉइंट यहाँ पे मिल गया वुमेन टीचर्स का, 4 लेवल के हिसाब से. तो आप इसको लेवल के हिसाब से एक पॉइंट कर दीजिए, क्योंकि ये लेवल के हिसाब से आपको निकलना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. Then women teachers, that means some teachers are trained and some teachers are not untrained. तो कुछ कुछ टीचर जो है वो ट्रेंड है, कुछ कुछ नहीं है. सो इसमें आपको एक डिफरेंस मिलेगा. इसमें ये दोनों में से आप सॉल्यूशन कुछ डाटा निकाल पाएंगे. सम टीचर्स आर मैरिड, सम टीचर्स आर अनमैरिड. ये भी एक है आपका. कुछ टीचर्स मैरिड है, कुछ टीचर्स अनमैरिड है. ऑटोमेटिकली मैरिड टीचर्स, अनमैरिड टीचर्स दोनों में सेल्फ कंसेप्ट का डिफरेंस आएगा. ऑटोमेटिकली ट्रेन टीचर्स, अनट्रेन टीचर्स का सेल्फ कंसेप्ट में डिफरेंट आएगा. ऑटोमेटिकली प्राइमरी लेवल टीचर्स, हायर सेकेंडरी लेवल टीचर्स दोनों में सेल्फ कंसेप्ट का डिफरेंस आएगा. सो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. सो आप जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है, उसी प्रॉब्लम को आप एनालाइज करने के बाद उसको, आपका मन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी हिसाब से आपको उनसे ढूंढिए. देन टेस्टिंग हाइपोथेसिस. आप जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट किया है, आप जो क्वेश्चंस आप मन में सिलेक्ट किया है, उसी क्वेश्चंस को आप टेस्ट कीजिए, उसी क्वेश्चंस के हिसाब से आप स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए सर्चिंग. एंड लास्ट आपको मिलेगा एक रिजल्ट. यस, वुमेन सेल्फ कंसेप्ट ऑफ वुमेन टीचर्स रियली डिफरेंट between the primary level teachers and secondary level teachers. तो प्राइमरी लेवल टीचर्स और सेकेंडरी लेवल टीचर्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंस है. आपको ये रिजल्ट निकल के आ रहा है.
So this is verifying of the result and checking the result. So now इसको हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे. So first is identifying and defining the problem. The student should be able to identify and clearly define the problem. The problem that has been identified should be interesting, challenging and motivating for the students to participate in exploring. Actually मैंने पहले ही बोला आपको एक टॉपिक एक प्रॉब्लम आपको सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, बट यहाँ पे बोला है द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड मोटिवेटिंग. एक्चुअली अगर ऐसा कुछ टॉपिक हम स्टूडेंट्स को देंगे ताकि उनमें इंटरेस्ट रहे. सो अगर वो लोग इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो लोग का मोटिवेट नहीं होगा उसी टॉपिक के ऊपर, दैट मीन्स आप कुछ नहीं करेंगे. आप खुद को आपसे एक बार सोचिए, जैसे कि मेरा ये टॉपिक पढ़ने का एकदम ही मन नहीं है, अगर हम बोलेंगे उसी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, इज़ इट पॉसिबल? नेवर. तो सेम उसी है, आप जो प्रॉब्लम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उस प्रॉब्लम शुड बी इंटरेस्टिंग. एंड ये अगर इंटरेस्टिंग होगा स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली उसका एनर्जी ग्रो करेगा, एनर्जी ग्रो करके वो कंप्लीट कर देगा. सो दिस इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. नेक्स्ट, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड as to what is given and what is to be find out. आप इस प्रॉब्लम में क्या दिया है और इस प्रॉब्लम में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आपको केयरफुली इसको एनालाइज करना है. गिवन फैक्ट्स मस्ट बी डिफाइंड एंड एक्सप्रेस्ड इफ नेसेसरी इन सिंबॉलिक फॉर्म. सो आप एकदम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप इसको एनालाइज कीजिए, और जो एनालाइज कीजिएगा आप पॉजिटिव एनालाइज कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा केयरलेसली अगर आप सोचेंगे, केयरलेसली अगर आप एनालाइज करेंगे, दैट मीन्स आपका जो हाइपोथेसिस होगा वो गलत होगा. आपका जो सोच, आपका जो क्वेश्चन एराइज करेगा मन में, वो गलत होगा. अगर वो क्वेश्चन गलत होगा मीन्स आप उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर एनालाइज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव हाइपोथेसिस, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूँ. अगेन, फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल रीज़न ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम. पॉसिबल रीज़न, आपका क्या क्या कारण हो सकता है, ये जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन में क्या क्या कारण हो सकता है, ये प्रॉब्लम का निकलने में क्या क्या कारण हो सकता है. सो यू शुड फाइंड आउट पॉसिबल रीज़न, आपको फाइंड करना है. दैट मीन्स वही होगा आपका हाइपोथेसिस. फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर. ऑब्वियसली आप जब सोचेंगे कुछ मैटर के ऊपर, ऑब्वियसली आप जब सोचेंगे कुछ प्रॉब्लम के ऊपर, ऑटोमेटिकली आपका जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा गुण बढ़ जाएगा. सो हाइपोथेसिस डेवलप्स थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द चाइल्ड. The focus at this stage is on hypothesizing, searching for the tentative solution of the problem. तो एक बच्चे जब एक क्वेश्चन, अब देखिएगा बहुत सारा क्लासरूम में जब हम पूछते हैं बच्चे को क्वेश्चन, उसको नहीं है, उसका जवाब उसके पास नहीं है, दैट मीन्स वो बहुत टाइम सोच रहा है, उसका फेस भी डार्क हो जाएगा, तो इतना वो टेंशन में होगा. मतलब उसका जो ब्रेन है वो काम कर रहा है हाई स्पीड से, वो सर्च कर रहा है इसका जवाब क्या हो सकता है, या इसका जवाब क्या हो सकता है. तो ये जो सोच रहा है, ये सोचते सोचते वो बहुत सारा पॉइंट्स उसके मन में आ जाएगा. ऑटोमेटिकली वो आपका राइट आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन वो रेफरेंस और सपोर्टिंग बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो सीख पाएगा. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द लर्नर्स. नेक्स्ट इज टेस्टिंग हाइपोथेसिस. सो आप जो हाइपोथेसिस, आप जो क्वेश्चन, पॉसिबल रीज़न जो आपका मन में आया है, उसको अभी आप टेस्ट करेंगे. अप्रोप्रिएट मेथड शुड बी सिलेक्टेड
to test the validity of the tentative hypothesis as a solution to the problem. As a solution to the problem. If it is not proved to be the solution, the students are asked to formulate alternative hypothesis and proceed. देखिए मैंने पहले आपको बोला, यहाँ पहले बोल दिया गया था, जब आप हाइपोथेसिस चूज़ कर रहे हैं, जब आप एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, केयरफुली आप एनालाइज कीजिए, क्योंकि वो एनालाइज अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप जो पॉसिबल रीज़न है वो पॉसिबल रीज़न को आप नहीं समझ पाएंगे। अगर पॉसिबल रीज़न आप नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपका हाइपोथेसिस गलत होगा। आपका जो पॉइंट को लेके आप सर्च करेंगे, जो पॉइंट्स को लेके आप रिसर्च करेंगे, उस पॉइंट को गलत होगा। अगर उस पॉइंट गलत होगा तो अल्टीमेट लास्ट में आके आपका टोटल रिसर्च, टोटल थिंकिंग, टोटल टाइम वेस्ट होगा। दैट टाइम आपको वो हाइपोथेसिस मतलब काम नहीं करेगा। इसीलिए इफ़ इट इज़ नॉट प्रूव टू बी सोल्यूशन, मतलब आप जो सोल्यूशन का एक्सपेक्टेड आंसर मांग रहा है, अगर उसी हिसाब से नहीं आ रहा है, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फॉर्मुलेट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दैट मीन्स ये फिर उसको सोचना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उनको हाइपोथेसिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। सो बी केयरफुल जब आप एनालाइज करेंगे। मेन पार्ट वहीं पे है, एनालाइज करने के समय आपको ध्यान देना है केयरफुल। एंड लास्ट वन इज वेरीफाइंग ऑफ द रिजल्ट और checking the result. No conclusion should be accepted without being properly verified. Actually आप जो हाइपोथेसिस लिया है, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है तो ये तो कंक्लूशन आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। एट दिस स्टेप द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डिटरमाइन देयर रिजल्ट्स एंड सब्सटेंट द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन. The students should be able to make generalization and apply it to their daily life. So this is verifying of the result and or checking the result. So ये actually एक प्रॉब्लम को जो जब हम सॉल्व करेंगे, एक प्रॉब्लम को जब सॉल्यूशन निकालेंगे, उसी का ये है एक स्टेप्स. सो ड्यूरिंग क्लासरूम, अभी जो क्वेश्चंस अराइज हो रहा है ड्यूरिंग क्लासरूम, व्हाट यू विल डू, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस भी नहीं फ्रेम कर पाएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं सोच पाएगा. सो व्हाट विल डू यू, ओनली यू हैव 40 मिनट्स. सपोज एकदम सिंपली हम क्लासरूम का जो सिचुएशन है, क्लासरूम सिचुएशन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके ऊपर जस्ट थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. सो सपोज यू आर गिविंग वन प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स. ठीक है बच्चे लोग, अभी ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिया, ये 2 क्वेश्चंस को आप लिख के दिखाइए मेरे को, अपना लैंग्वेज में लिखिए. तो आप बोलेंगे प्लीज़ राइट योर ओन लैंग्वेज. तो सब बच्चे ने वो आपका अपना लैंग्वेज करके वो लिखेगा. सो देखिए, आप प्रॉब्लम दे दिया है, स्टूडेंट्स अभी उसके ऊपर एनालाइज कर रहा है. देखिए आपका एनालाइज नहीं हो रहा है, या हाइपोथेसिस वो लोग नहीं सोच रहा है, लेकिन उनका दिमाग में हाइपोथेसिस है, वो एनालाइज कर रहा है. मैडम ने, सर ने ये क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बोला, मतलब इसका जवाब ये होगा, ये हो सकता है, यही करेक्ट होगा. ये सब जवाब, ये सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स का मन में अराइज होगा. ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स लिखते लिखते उनका सही जवाब या थोड़ा पार्शियल करेक्ट जवाब वो लोग लिख पाएगा. तब लिखने के बाद आपको दिखाएगा, तब आप देखेंगे जो हाँ ये आपका राइट हुआ है, आपका पार्शियली राइट हुआ है, आपका थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ये देखिए आप डिसीजन दे रहा है. तब स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक फील कर पाएगा, नहीं मैं जो सोच रहा था, मेरा जो एनालाइज किया था, मैं उस समय एनालाइजिंग में मेरा प्रॉब्लम हुआ था. सो ये है क्लासरूम. ड्यूरिंग क्लासरूम आप जो प्रॉब्लम, जब क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, यह है प्रैक्टिकल सिचुएशन. सो एज ए ट्रेनिंग टीचर आपको इसलिए ये सीखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम यू आर द टीचर
यू विल बी द टीचर। तो अगर आप टीचर बन जा रहा है, आपको स्टूडेंट्स का जो सोच है उसको आपको देखना है। तो उसी हिसाब से आप स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसी हिसाब से एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सो hope you understood, and now we'll discuss role of teacher. So what would be the role of teachers? देखिए, फर्स्ट मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डिस्कवर अमंग द स्टूडेंट्स। स्पिरिट ऑफ डिस्कवर एज ए टीचर्स, आप अभी ट्रेंडी टीचर है, आप स्कूल में जाके ये अप्लाई करेंगे। ये जब आप स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रोल क्या होगा? फर्स्ट, मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डिस्कवर अमंग द स्टूडेंट्स। स्पिरिट ऑफ डिस्कवर आप स्टूडेंट्स के मन में मेंटेन कीजिए। गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द सोल्यूशन इज रीच्ड। हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, क्लासरूम में जब कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस देते हैं बच्चे को लिखने के लिए, तो ठीक है बच्चे, ये अपना भाषा से, अपना लैंग्वेज से, अपना वर्ड से आप लिखो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है, तो उस समय हम कभी कभी स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, क्लू देते हैं, देखो ये सब हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे आप मेन पॉइंट हम बोल देते हैं, ये पॉइंट आप जो जवाब लिखेंगे उसमें ये सब पॉइंट रहेगा। सो गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल द सोल्यूशन इज रीच्ड। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्सटेंड ऑप्टिमम हेल्प टू ईच स्टूडेंट इन केस डिफिकल्ट्स आर एक्सपीरियंस्ड। आपको जितना हो सके उतना ही आप स्टूडेंट्स को हेल्प कीजिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम दे दिया है, स्टूडेंट्स वो सॉल्यूशन निकाल रहा है, दैट मीन्स वो लोग, उनका दिमाग, उनका उतना इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। सो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू हेल्प देम। देन सप्लाई ओनली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। आप चाहे तो उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं प्रॉब्लम के रिलेटेड। एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स फॉर द स्मूथ कंपटीशन ऑफ द वर्क। सो these are the basic role of teachers during the classroom problem solving methodology। एक्चुअली क्लासरूम में जब आप प्रॉब्लम देंगे स्टूडेंट्स को, उस समय आपका ये रोल होता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास we will discuss next model. Thank you.